ओके जी, सो अटेंडेंस अभी आफ्टर द लेक्चर हम करते हैं इसको जी. सो बिफोर द ब्रेक वी वर डिस्कसिंग स्टोरेज एंड स्कोप ऑफ वेरिएबल्स. वी हैव appended another property, rather couple of properties with the variables, including their name, type, space, the content. Now we are also discussing the duration a variable is staying in the memory, along with the concept of scope, where a variable can be referenced. So by the knowledge, virtue of the knowledge, we came to know that variable can stay in the memory if we want for a longer time interval. Otherwise, the by default property of variables to stay in the memory is whenever the control enters the block, the variables are created. Whenever the control leaves the block, the variables are destroyed. ठीक है, बातें नहीं करें भाई. The variables are destroyed. ठीक है. So if we want to make the variable stay, so we have discussed, उनको क्या हम बना देते हैं? Static. So in order to discuss all these concepts, a programming example has been devised with some functions, the calling of those functions, number of times, at least twice every function will be called. So as we can see, what you can grasp the concept or what is actually meant by lines number 8, 9 and 10 respectively. So first of all, line number 8. क्या है line number 8? Local word. ये क्या चीज है जी? Function definition है? Prototype. So first of all, it's a declaration of a function. Name of the function. Use local. Means इसमें कोई local variables create हो. Any input we are giving to that function. No input. What the function is returning? Nothing. So ये बिल्कुल इसी तरह है, correlated with the real world. A boss calls the worker without giving any file. It assigns that आपका जो काम है वो आप कर लें. The worker goes back, completes its work, and the next day he comes back to the boss. ठीक है. अब इसमें कहीं रिटर्न कीवर्ड नहीं होगा. मेन फंक्शन को कॉल करेगा यूज लोकल without any input. The function will be called, whatever is written inside the code, inside the definition of the function, it will be implemented, and the control goes back to the main where it was called. So even if there isn't any return keyword, the control will go back to the main. And the real world example is in front of you. I have just narrated it just to grab. So all of these three functions we have created, use local, use static local and use global, are having the same nomenclature, that these are their names. The use static local, line number 9, it will be creating some static variables without any input, it won't be returning anything. Likewise, use global will be called with some values. So after the declaration, so I have just also narrated the concept of writing a complete book last time, isn't it? Writing a program is like writing a book. So whenever we open a completely written book, well written book, we come across table of contents, isn't it? So now you can see in this complete program, line number 8, 9 and 10 are serving the purpose of table of contents. So what functions we are going to create in this program, with which input and what should be the output. So आपका एक idea हो गया, isn't it? So ये table of, now comes to the summary. वो main बता दे how calling is being done for these functions, in which order, and then comes the details of these functions respectively after the main. So before starting the main, in line number 12, I have created a variable. Which type of variable is this? Global. So overall structure, if I am going to create for this function, 1 main, just roughly, you have started the main, let's see, x equals to 1. So it's a global variable. It is created in the value with the content of the value 1.
The name of the variable is x. So we'll be creating the same name variables in every function to clarify our concepts. That what if same name is being declared over here? We have started the main integer x equals to 5. See out x. क्या वैल्यू है? Over here 5. See out x. 5 आएगी कि 1 आएगी? 5. ये दोनों x है, ये भी x है, ये भी x है, isn't it? यही तो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करना है। ये भी x है, ये भी x है। See out x. Which x will be such? Local. So how many says 5? No, raise hand. How many says 1? Okay, है। तो हम कमेंट में लिख लेते हैं 5 भी आंसर आपने दिया 1 भी दिया। ठीक है, लेट्स सी इसको आखिर में एग्जीक्यूट करते हैं, देन वी विल कोरिलेट। तो सी आउट एक्स हो गया। स्टार्ट अनदर न्यू स्कोप। देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हियर इनसाइड द मेन। लाइन नंबर 20 till line number 26 it says another scope of main. So we have these scope, larger scope of main. We can create another small scope inside main. This is also allowed. Now inside this scope we are creating another x with the value see out x. क्या वैल्यू है? 7, 5 और 1? 7. How many says 7? How many says 5? How many says 1? 5 पे कुछ आंसर मिल गए तो 7 and 5। अच्छा, इससे आप बाहर आ गए न्यू स्कोप से बाहर। We are over here. इसको क्लोजली आपने मॉनिटर करना है कि किस तरह मेन एग्जीक्यूट हो रहा है, अदरवाइज इसमें काफी कॉलिंग वगैरह हो रही है। लाइन नंबर 28। लाइन नंबर 28 मींस जैसे ही आप इस इनर स्कोप से बाहर आएंगे, ये लाइन नंबर 28 पे कर रहा है सी आउट एक्स विथ एक्स 1, 5 और 7। 5. लेकिन मिक्स आंसर हम सब लिख देते हैं 7, 5 एंड लेट्स सी। इसको हम दोबारा कोरिलेट करेंगे ईच एंड एवरी स्टेप। अब देखते हैं इसको जरा चैलेंज है। ट्वाइस कॉलिंग ईच फंक्शन। फर्स्ट कॉल टू लोकल, फर्स्ट कॉल टू स्टैटिक, फर्स्ट कॉल टू ग्लोबल। फर्स्ट सेट ऑफ कॉलिंग, सेकंड सेट ऑफ कॉलिंग टू ईच फंक्शन। यूज लोकल, यूज स्टैटिक लोकल, यूज ग्लोबल। आफ्टर कॉलिंग दीज फंक्शंस सी आउट एक्स एंड द मीन। ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है। समझ आ गया आपको ओवरऑल कि किस तरह हमने एक्स क्रिएट किए हैं। अब हम कॉल कर रहे हैं। नाउ वी आर एट लाइन नंबर 30। ये हमने सब कुछ लिख लिए, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ वी आर ओवर हियर लाइन नंबर 30। फ्रॉम लाइन नंबर 30 द कंट्रोल विल गो टू डेफिनेशन ऑफ यूज लोकल विच इज आफ्टर द मेन। ये आगे जी यूज लोकल की डेफिनेशन में कौन सा वेरिएबल, किस नाम का वेरिएबल क्रिएट हो रहा है? अगेन एक्स। यूज लोकल फर्स्ट कॉल एक्स इज क्रिएटेड विद द वैल्यू सी आउट एक्स। क्या है? 1, 5, 7 या 25? ओके, इसमें हम सब एग्रीड हैं क्योंकि ये एक्स इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। यहां पर x 25 प्लस x सी आउट x 26. पेट्रोल गोज बैक। कोई इनपुट नहीं है, कोई आउटपुट रिटर्न नहीं हो रही। देख यहां वेरिएबल क्रिएट हुआ है, अपडेट हुआ है, कंट्रोल विल डेफिनेटली गो बैक फ्रॉम वेयर इट इज कॉल्ड विदाउट एनी राइटिंग ऑफ रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न will return the value, but if there isn't any return, it's a void. Control will go to the main. ये वो काम था जो बॉस ने दिया विदाउट फाइल, कि आप अपना काम कर लें और फिर वापस रिपोर्ट कर। ठीक है,
जी, ये सब रियल वर्ड ही चल रहे हैं ना। ये आप देखें जी, लाइन नंबर 30। अब हम कहां पर हैं? 31। आई होप एवरीवन ऑफ यू इज विद मी। ठीक है, लाइन नंबर 31, यूज स्टैटिक लोकल। इसकी डेफिनेशन कहां है? यूज लोकल के बाद ये आगे जी। अब स्टैटिक लोकल में क्या कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल टू स्टैटिक लोकल, एक्स विद द वैल्यू स्टैटिक है, सी आउट करें एक्स क्या होगा? सी आउट एक्स डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं, ये हमें नेक्स्ट कॉल बताइए टू ईच फंक्शन। इससे नहीं पता लगे। अभी मैं आपको कहता हूं डिस्ट्रॉय हुआ, उसको कोई प्रूफ नहीं, यस इट इज स्टेइंग। सी आउट एक्स, यहां पर एंड हो गया, कोई रिटर्न नहीं है, नो इनपुट नो आउटपुट, कंट्रोल विल गो बैक, स्टैटिक भी होगी अपडेट। ये तमाम एक्स मेमोरी में क्रिएट हो रहे हैं, आर दे आर स्टेइंग और नॉट, ये भी हम देख लेते हैं। सो वी आर डन विद लाइन नंबर 31। लाइन नंबर 32, यूज ग्लोबल, यूज लोकल, यूज स्टैटिक लोकल, एंड देन कम्स यूज ग्लोबल। इधर तो एरर आ गया जी, कोई एक्स क्रिएट किए, सी आउट एक्स। आइडियली अगर आप किसी फंक्शन में कोई चीज डिक्लेयर नहीं करते और डिस्प्ले कर देते हैं तो वो एरर है, isn't it? Name is indicating C out x, it will assess the global value. कोई x क्रिएट नहीं होगा, use global. You haven't created any x, haven't declared x की क्या वैल्यू होगी? Multiply by 10. Return. Control return हो गया वापस। So we are done with line number, first call to each function. Now we are at line number 33. अब हम देखेंगे जब हम दोबारा इस फंक्शन में जाएंगे क्या स्टेट्स हैं इन x वेरिएबल्स की। So line number 33, use local. First of all, अब बताएं जी, ये जो क्रिएट हुआ था, is it staying in the memory or not? ये एक्चुअली उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो गया था जब ये रिटर्न हुआ था। जी सर। अगेन ये वैल्यू क्रिएट होगी बिल्कुल उसी तरह, वो उसी तरह अपडेट होगी। ये इस चीज का प्रूफ। इसको जब आप रन करेंगे तो आप देखेंगे ये 25 26 हुआ। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये लेटेस्ट वैल्यू से स्टार्ट नहीं होगा 26 से, ये दोबारा क्रिएट होगा 25 26। इट मींस इट वाज डिस्ट्रॉयड प्रीवियसली, which proves the property whenever control enters the block the variables are created, whenever control leaves the block they are destroyed. अब आप अगेन बाहर जा रहे हैं, अगेन इट इज नेक्स्ट टाइम दोबारा। अब जितनी दफा आएंगे 25 26 25 26। अभी देखते हैं लाइन नंबर 34, दोबारा इस फंक्शन में आ जाएंगे सेकंड टाइम। आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 51, यहां पर लाइन नंबर 62 says create a variable static। अब क्या होगा? ये तो फिर वही काम हो रहा है, फर्क क्या हुआ इसको रिटेन रखने में? दोबारा क्रिएट हो रहा है, isn't it? तो इसको स्टे करने का कोई मकसद नहीं है टिल द टाइम ये 51 52 होता। तो ये एक्चुअली इस तरह नहीं है। स्टैटिक वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस। सेकंड कॉल में ये प्रीवियस वैल्यू से आगे चलते हैं। ये कमेंट पढ़े पहले, ये हमने जो बोर्ड पे लिखा है ये गलत है। स्टैटिक वेरिएबल्स इनिशियलाइज ओनली वंस एंड इट रिटेन्स द वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल। अगर वो दोबारा रीइनिशियलाइज हो गए फिर तो ऑटोमेटिक और स्टैटिक में कोई फर्क नहीं है। तो वो एक दफा इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज हो चुके, अपडेट हो चुके। नाउ नेक्स्ट टाइम ये जो इसकी डिक्लेरेशन है इट विल बी
51 and not be considered. 51 entering and 52 leaving. 50 51 ये देख सकते हैं, ये स्टैटिक वैल्यू जी। फिर से रिपीट करो। देखिए बिल्कुल, देखिए हमने स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक फंक्शन में दोबारा आए हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 51 से चलेगा क्योंकि नेम स्टैटिक है, बट एक्चुअली इट्स नॉट द केस। हमें ये लाइन एनकाउंटर होगी है, which says दोबारा क्रिएट करें, बट एक्चुअली C++ ignores this line in the second and onwards call. एक बार इनिशियलाइज हो गया स्टैटिक, now it won't be declared next time. एक दो now it will only be updated. ये 51 था तो क्या डिस्प्ले होगा 51, अपडेट हुआ 52. This says it's static. It is keeping the values, maintaining the state. Control goes back. किस लाइन पे हैं जी हम? Second call to use global, line number 35. ये देखें, again C out X. ये हमने कहा डिस्ट्रॉय हो गया, ये हमने कहा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, तो स्टैटिक है। इसकी क्या प्रॉपर्टी? स्टोर हो जाएगी सर। If I just comment globals behave statically, तो 10 it means global destroy नहीं होते। वो अगर अपडेट हो गए हैं तो it means ये वैल्यू आगे क्या होगी? X equals to 10 multiply by 10 X becomes 100। तो ये एक्चुअली स्टैटिक था और ग्लोबल बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होते हैं। ये उसका प्रूफ है, अदरवाइज वैल्यू आपकी 1 और 10 होती दोबारा, वो 10 और 100 होती। ठीक है, नाउ कंट्रोल गोज बैक। इन सब को इंप्लीमेंट करने के बाद आप देख सकते हैं कंप्लीट प्रोग्राम में अभी तक हमने वेरिएबल का नाम एक्स के अलावा नहीं रखा, डिलिबरेटली। आइडियली आप ऐसे ना करें, हमने खुद किया ताकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इस वक्त लोकल हो रहा है कि स्टैटिक हो रहा है, इनर स्कोप हो रहा है, आउटर हो रहा है। लाइन नंबर 37, सब एक्स डिस्प्ले हो गए हैं यहां पर 6 टाइम्स, 1 2 सी आउट एक्स। अब इधर एक्स कौन सा होगा? 1 5 7 या इनमें से कोई, और उसके बाद मेन एंड होगा। क्या होगा जी? इससे पहले आपने कहा था 7 5 या 1 मल्टीपल, इस कॉलिंग के बाद क्या होगा? Any other answer? Which we can go relate. Okay, let's see. अब इसको हम रन करते हैं जी प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। लोकल एक्स इन मेन आउटर स्कोप, ये वाला एक्स देखते हैं हम आंसर। ये वाला एक्स क्या है वैल्यू 5, क्योंकि ये एक्स का स्कोप है, ये ग्लोबल को असेस नहीं करेगा। It is a local variable of main. Local x is main inner scope. ये स्कोप है। इधर जो x क्रिएट होगा with the value 7, तो सी आउट क्या करेंगे तो क्या आएगा? 5 नहीं आएगा, ये अन्य स्कोप है। और जब ये स्कोप लीव होगा ये x7 भी डिस्ट्रॉय हो गया। Whenever control leaves the block, it is being destroyed. अब आप यहां पर हैं, ये एक्स कौन सा है? ये देखिए किस स्कोप है? 5, तो इसका आंसर 5 है। ये देख लेता जो 7 कह रहे थे, 7 तो यहाँ है ही नहीं, 7 तो डिस्ट्रॉय हो चुके 5। अब आप आ रहे फर्स्ट कॉल टू लोकल, 25 एंटरिंग, 26 लीविंग। फर्स्ट कॉल टू स्टैटिक, 50 एंटरिंग, 51। फर्स्ट कॉल टू ग्लोबल 1 10। ठीक है, कंसंट्रेट करें जी। अभी लास्ट चीज डिस्कस हो रही है, कंसंट्रेशन लूज ना करें। अच्छा जी, सेकंड कॉल देख लें। दिस प्रूव्स, ये देखें अभी सर, दिस प्रूव्स के डिस्ट्रॉय हुआ था 25 26। ये एन नंबर ऑफ कॉल्स हुई, यही होगा 25 26 25। और स्टैटिक शोज 50 51 51 52 52 53। इट कीप्स ऑन the number of times. Global behaves statically. 1 time मतलब क्या हो गया?
जब इस सब को कॉल करने के बाद आप किस एक्स पे आई हैं तो ये एक्स भी मेन का है जी सर ये सब। तो ये है वो एग्जांपल, आप इजीली इसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, इन विच वी हैव डिलिबरेटली केप्ट एवरी वेरिएबल नेम एज एक्स। जो कंफ्यूजन है आपकी कि सेम नेम रखेंगे, उस फंक्शन में भी एक्स है, मेन में भी एक्स है, तो क्या होगा जी? एक मिनट क्वेश्चन सुन रहे भाई जी। हाँ, ये क्वेश्चन करेंगे कि ये किस तरह आया है 10 और 100। लेकिन स्टैटिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप क्रिएट करें वेरिएबल क्रिएट हो, जब आप लीव करें तो वो डिस्ट्रॉय ना हो, ये स्टैटिक था। तो मैंने एक कमेंट किया ग्लोबल्स बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होते हैं, उनमें हमें स्टैटिक लिखना नहीं पड़ता, वी डोंट हैव टू राइट स्टैटिक ओवर हियर, वो है ही स्टैटिक ऑटोमेटिकली। तो मींस कि 1 से 10 हुआ, अब ये डिलीट नहीं होगा, ये 10 से आगे चलेगा। अगर आपको समझ आई है तो एक क्वेश्चन का आंसर दें। लास्ट क्वेश्चन बस, मुझे पता आपके लिए डायरेक्शन के लिए काफी है आज की, तो मुझे इसलिए एक क्वेश्चन का आंसर दे दें। अगर आप मेन के अंदर इस x की वैल्यू आप कह रहे हैं 5 है, मैं 1 असेस करना चाहता हूँ सर, उसके लोग एडवांस चल रहे हैं, आंसर दे रही है लेकिन बाकी लोग जरा समझ रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ एडवांस चल रहे हैं, आप इनको बैठ के पढ़ते हैं सर। देखिए आप क्वेश्चन सुन लें पहले सब, क्योंकि यहाँ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है या यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि एक्स सी आउट आप कर रहे हैं 5, आप चाहते हैं ये वाला 1 असेस हो, तो उसके लिए स्कोप को रिजॉल्व करने की जरूरत है। वी रिक्वायर अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर व्हिच सेज 2 colon x, now this x will be ये देखें जी, ये है जी वो ऑपरेटर, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। इट इज कॉल्ड यूनिटरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब ये समराइज कर रहा है आपके पूरे लेक्चर को, सुन ले। If you want to assess global variable, if local has the same name, पहले तो क्वेश्चन बनता है आपने सेम नेम क्यों रखा? इसको आप a रख दें, इसको x रख दें, सिंपल सी आउट a करें वो आ जाए। लेकिन इवन इफ आप चाह रहे हैं कि सेम नेम भी हो, तो आप ये x के साथ ये लगाएं, नाउ ग्लोबल विल बी असेस्ड इंस्टेड ऑफ लोकल। Last point, it is good to avoid using same names for local and global. Have different names. ठीक है? Okay. Now let's have